Good morning, class 9. Today we are going to start chapter 1 of economics, and the chapter name is The Story of Village Palampur. I think I already revised you geography chapter 1, chapter 1 in civics, why what is democracy, why democracy, and now we are moved to economics. Okay, this is a revision class. Kindly remind once again. In the previous classes, we already talk about the chapters first of respective books of civics and geography. It's third book, economics, and we will later move on to history for chapter number 1. I recently add chapter number 1 of history, so kindly remind it. Chapter 1 is history, also be come in PD1 exam. Okay, so in last previous classes I also discussed about the pattern of PD1 level of questions, but still many students are so confused. So this is not a warning, this is a simple warning as I say. Kindly watch all the previous classes. If you have problem about your topics or question answers or something, that then kindly remind of the teacher, ask him by messaging or calling, but call me after 1 p.m. Okay, and most important thing is when you will be at school campus for notebook checking, you have to be complete your work. Okay, those whose work is not completed, now I not told you what to do, but you will be punished. Okay, let's start. So this is not a very big chapter is very easy. Some kind of definitions and new words to be introduced you through economics. This is your first experience to explore economics as a whole book. So let's start. Okay, बेसिकली एक पूरा स्टोरी है जो कंसेप्ट क्रिएट करता है प्रोडक्शन के बारे में. एक पालमपुर विलेज है जो हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब हकीकत में नहीं है, बट एक आप लास्ट में देखेंगे कि एक बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, उत्तर प्रदेश में. वहाँ पे एक गांव है, उसका एक सर्वे किया, उसके अकॉर्डिंग उसको सैंपल लिया प्रोडक्शन के तौर पे, और पूरे विलेज की कहानी को और उस चीज़ को वहाँ समझाया गया. ओके, so let's start. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. Yes, farming is the main activity. As you maybe know that all the villages have the farming is main activity. So here is also in Palampur the main activity is farming, and other several activities such as small scale manufacturing. Small scale sense, not much investment of money, not much investment of labor, nor, and there is a less technique used in the small scale manufacturing. That basically we call a small scale industry and medium. Okay, and all of them is handicraft like type market. And yes, and second is transport. As you know, transport like small vehicle like बैलगाड़ी एंड टेम्पो, इस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं वहाँ पे, और ये सारे के सारे वहाँ लिमिटेड स्केल में है. ओके, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अगर आप किसी भी अच्छे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे डेयरी की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें, we have to need various type of resources, just like natural resources, man-made items, human effort, money, etc. As you know, natural resources is very essential toward man-made items, small equipment, small tools, human effort. That means the hard work of all of us,
जैसे आप खुद स्टार्ट करते हैं, मैं खुद स्टार्ट करता हूँ, तो हमारी क्वेश्चन है एंड मनी। ओके, तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली प्लॉट ये दिया है कि जब आपने ये समझ लिया है कि उसमें फार्मिंग है और कुछ इस तरह की फैमिली रहती हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, जो एक गांव की कहानी होती है। एंड देयर आर अपर कास्ट ऑन द लोअर हैंड, there is low caste people, and you all already know that if there is a high caste in a village, they are already prosperous, they have money. Okay, electric connections, electricity, power, various type of small business, and a primary health run by government, and one dispensary when sick are treated. So basically this is plot. What is the introduction of Palampur village? Okay, here is the source. The narratively is part based on research study by Gilbert Eaton of village in Bulandshahr district. Okay. Okay. Important topic is here, organization of production. What do we need as an organization to do production? अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या क्या होना चाहिए उसके हिस्से में, प्रोडक्शन किस तरह से बेहतर हो सकता है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या नीड होती है. ओके, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन, and sometimes it asks you as a short type question, long type question, but also asked you PD1 like fill in the blanks or in a one line word, uh, or answer in a single word type of question. Okay, the aim of production is to produce goods and services that we want. प्रोडक्शन का हमेशा ये एम होता है कि वो गुड सर्विस हमें मिलें जो हमें प्रोवाइड मतलब लोग करें, मतलब जो सर्विस है वो हमें मिले, किसी भी तरह की सामान की ज़रूरत हो उस चीज़ के लिए प्रोडक्शन किया जाता है. देर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन? Question is, what are 4 requirements for production of goods and services? Okay, what are 4 types of requirement for production of goods? And answer is, the first requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals. दिस इज़ लैंड. बेसिकली फॉरेस्ट, मिनरल और वाटर होंगे तो बेटा वो होंगे तो ज़मीन पे ही. तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास लैंड होना चाहिए. ओके, सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारा लेबर. अब लेबर भी कैसा कैसा हो सकता है, वो जो पीपल होते हैं जो कि वर्क कर सकते हैं. समटाइम्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द necessary task. You can see that diploma holders or degree holders, BTech holders, MBA holders, these are the professionals. ये अपने काम में highly skilled होते हैं और well educated होते हैं, तो हमें कई बार इस तरह के लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है. तो second is labor. Okay, the third requirement is physical capital. What is physical capital? Physical capital, if someone asked you what is physical capital, that is the variety of inputs required every stage during production. जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एक मैकेनिक है, ये मशीन्स को सेटअप कर रहा है, देख रहा है. तो एक मशीन्स को देखने वाला लेबर भी होता है, एक इंजीनियर भी होता है, मैकेनिक भी होता है. तो आपने कौन कौन से इनपुट लगाए, मशीन्स लगाए हर एक छोटी छोटी स्टेज पे. जैसे आप कोई भी छोटे से कदम को देखें, जैसे आपका नोटबुक है या बुक है, वो पब्लिश होता है तो आप देखते हैं पहले पेपर बनता है. ठीक है, पेपर से पहले भी बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है. पल्प बनना, पल्प के बाद उसको सुखाया जाना, उसको स्लाइसेस में काटना, पेपर के बाद उस पर फिर प्रिंट होता है. तो प्रिंट के लिए मशीन अलग चाहिए, पेपर कटिंग के लिए अलग मशीन चाहिए, प्रिंट होने के बाद फिर उसको बाइंड करना होता है, तो बाइंडिंग मशीन अलग होती है. तो कहने का मतलब है अलग अलग लेवल पे जाने के बाद अलग अलग मशीन्स की रिक्वायर हमें होती है. ओके, what are the items that come under physical capital? That is the question. Write in your notebook, what are the items that came under physical capital? Very easy. First is, and here is answer. Tool, machines, buildings. If you want to write in 2 or 3 lines, then select the lines from this paragraph. That is, tools and machines range from very simple tool to such as farming floor to sophisticated machines such as generator, turbine, computers. Okay,
So you can write only these 2 3 lines or either these 3 lines. Tool machines building can be used in production over many years and called fixed capital. So here is another question: what is fixed capital? Question is, what is fixed capital? So you may write from here: tools, machine and buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. Okay, and this is the another question. The answer is start from here: A heading, tool, machine and building. Okay. B, what is B? Raw material and money in hand. That is, अगर आपके पास कागज़ बनाने के लिए पेड़ ही नहीं होंगे तो आप कागज़ कैसे बनाएंगे, और आपके पास पैसा होना चाहिए. ओके. प्रोडक्शन रिक्वायर ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल. सबको पता है कच्चा माल ही चाहिए. वीवर को बुनने के लिए यार्न धागा चाहिए. ओके. तो पॉटर को यूज़ करने के लिए अगर उसे बर्तन बनाने हैं तो उसे क्ले चाहिए, मिट्टी. तो मनी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. ठीक है. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. सो बेसिकली इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? So you can answer it as raw material and money in hand are called working capital. Raw material भी हो और हमारे पास money भी हो तो हम उसको working capital कहते हैं. Okay, so these are basically two points, and you also learn about fixed capital and working capital. Fixed capital used for machine tools and working capital is used for raw material and money, that is working capital. And what is fixed capital? Used for machine and tools used over by production in many years. Okay. There is fourth requirement too. This is fourth. What is? You will need knowledge and enterprise to be able to together land, labor and physical capital and produce an output, either to use yourself to sell in the market. These days this is called human capital. We shall learn more about human capital in next chapter. As you know, human capital, if you learn about some human resources, because everything what is here and there and what is skilled or non-skilled is related to human resources. Because if human is not so skilled, then he is not so much learner, not learn much for their work, so that we call unskilled. And this is also under human resources. So what is human capital, we have to learn more about in next chapter. Okay. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. So what are factors of production? This is question. Okay, and answer is right from here. Every production is organized by combining land, labor, physical and capital human. As you learn about capital, as you learn about labor, as you learn about land, and these all factors are came to be known as factor of production. Okay, this is the answer under the question. Write the factors of production and what are factors of production is the same. Okay, farming in Palampur. As you know, land is fixed in everywhere on the earth. Land is fixed, and the population is growing very rapidly or fastly in India and in many other countries too. So basically, how we utilize our land and to acquire all the needs that people want to be. So this is the basic question. अगर population बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लैंड फिक्स है तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकें, सब लोग उसके अंडर में आए. एंड वन मोर थिंग अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, चैप्टर्स में यहाँ कई बार कुछ इस तरह की कहानियाँ आएंगी. ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल हैं, स्टोरी के ज़रिए समझाए हैं. ये एग्ज़ाम्पल हैं, आप काइंडली इसे रीड ज़रूर करें. रीड वंस. अगर आप रीड करेंगे तो जो भी चीज़ आप समझना चाहते हैं वो आपको समझ में आएगा. और ये जो इस तरह के यहाँ पे ये पैराग्राफ दे रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक गांव की एक कहानी का हिस्सा है. इज़ देयर अ वे
वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या ऐसा कोई तरीका है कि वो एक ही लैंड से बहुत सारा फसल उगा सकता है? तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होता है, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आप जानते हैं, आप खरीफ भी करते हैं, आप जानते हैं आप रबी भी करते हैं, और इसके बाद एक और होती है, उसे क्या बोलते हैं, जायद, जायद भी करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप करते हैं। तो कहने का मतलब है, क्या कोई इंसान ऐसा है एक ही लैंड से ज़्यादा ग्रो कर सकता है? यस, वी कैन से दैट वी कैन ग्रो ऑन द सेम लैंड। बेसिकली एक्चुअली क्या है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है कि आपको मैं बहुत एक्सप्लेन करूँ ब्रीफली या डीप में जाके। ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो आप सिर्फ समझ सकते हैं। आपको टेबल समझनी होंगी। इकोनॉमिक सर्वे है 2013-14 का। इसमें दिखाया है कि कल्टीवेटेड एरिया ईयर पे ईयर कैसे बढ़ा है। तो 1915 में हमारे पास 120 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन थी, और 2011 में हमारे पास 140 है। तो 1970 के बाद ज़मीन उतनी ही रही है। यानी इस टाइम से 1950 से 1970 के बीच में 20 इयर्स के गैप में हमने ज़मीन को फर्टाइल बनाया है। हमने कोशिशें की हैं, क्योंकि हम न्यू न्यू इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उसके बाद हमने कोशिश की है कि क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली उस टाइम सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए थे। Most of the population, 90% population are involved in agriculture. So that's why in the gap of 20 years we increase the fertile land more, and after 1970 there is no increasement. So previously we asked the question, can we grow more from the same land? क्या हम सेम लैंड से उसको मतलब उगा सकते हैं? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लेट 69 में हुआ। इंडियन फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए वीट और राइस दिए गए। ये HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, ये फुल फॉर्म है, इसको आप याद कर लें, ये फुल फॉर्म है, और इसको आप लिखें भी। इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटीज़, किसकी? सीड्स की, जो कि हमारे ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं। आज आप देखते हैं ये जो हाई ट्रेडिशनल वीड्स हैं, इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हमने बढ़ाया है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। क्यों? क्योंकि जो नई किस्म आई है ट्रेडिशनल मेथड को हटाने के बाद, इसको हमने क्रॉस कर दिया है, इसको हमने यूज़ करना बंद कर दिया है। HYV, हाई यील्डिंग सीड वैरायटीज़ को यूज़ किया है, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत बड़ा है। और ये आप देखेंगे, ये भी देखिए 2010 में ये 140 से भी ऊपर जा रहा है, और 1950 में हम 120 के कुछ अप्रॉक्सी थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे। और आप अगर ये चीज़ कहना चाहें कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या होते हैं, तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, HYV, फार्मिंग मशीनरी, डीजल, ये इरिगेशन के लिए कैनाल, पंप सेट और इलेक्ट्रिसिटी, इसको यूज़ करना। तो ये एक तरह से क्वेश्चन भी यहाँ से होता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। आप इरिगेशन मेथड को बता सकते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और HIV और फार्मिंग मशीनरी और डीजल, इन सब को आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कर सकें। जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट होता चलेगा, मैं वो आपको समझाता चलूँगा, बताता भी जाऊँगा कि आपको ये चीज़ लिखनी है या आपको करनी भी है। ओके, सो बेसिकली उसमें था क्या, जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, वो फर्स्ट मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड था मॉडर्न, उससे इंट्रोड्यूस्ड हुए। और इन्हीं रीजन्स में ट्यूबवेल इरिगेशन लगाया गया, HYV सीड्स यूज़ हुए, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बहुत सारा गेहूं अनाज जो है मिला, हार्वेस्टिंग फास्टर बनने से, बड़ी बड़ी मशीन्स आने से। तो बेसिकली आज भी इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया लेवल पे, तो इंडिया में आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यही लोग आज भी क्रॉप्स के मामले में टॉप पे रहते हैं, हमेशा टॉप पे। क्योंकि वहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने एक्सेप्ट किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे फिर वहाँ पे प्रोडक्शन जो है आपका बढ़ा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पल्सेस और वीट, ये पल्सेस का, ये वीट का है। 1950-65 की बात का तो 10, ये शायद मिलियन टन में है। ठीक है, तो
और गेहूँ भी 10-10 के बराबर था। आज 2012 में हमने 10 से 18 किया है। इतने सालों में हमने इतना बढ़ाया है। गेहूं को 10 से हमने इतना बढ़ाया है। सबसे ज़्यादा इसे बढ़ाया है 82 मिलियन टन, सबसे ज़्यादा इसको बढ़ाया है। और ये सोर्स दिया है हमारे यहाँ, ये एग्रीकल्चर डायरेक्टर की बुक है, और ये उसमें से डेटा दिया होता है जो गवर्नमेंट जो है सरकार की अनाज मंडियों से डेटा आपको लेके दिखाती है। ओके, सो दीज आर द बेसिकली द क्वेश्चंस। विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड बनी रहती है, लैंड रुक सकती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और मैं आपसे फिर अगेन कह रहा हूँ कि जो ये जो कहानी है और ये जो कहानी है, आप प्लीज़ इसे रीड ज़रूर करें, और एक बार आप ज़रूर रीड करें, आप समझ जाएंगे इससे बहुत सारी चीज़। तो ये भी पढ़ें और ये भी पढ़ें। एंड द क्वेश्चन इज़ हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब आप उसमें से देखेंगे कि कुछ फैमिलीज लैंडलेस हैं, कुछ फैमिली हैं दलित्स हैं जिनके पास फार्मिंग लैंड जो है सफिशिएंट लैंड नहीं होगी एग्रीकल्चर के लिए। तो वही पूछा गया है कि सबके पास क्या लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड सही से है, या किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है। तो ये खैर ये कहानियाँ आप इस तरह की अपने विलेज में भी समझ सकते हैं। आपके गांव की ठीक वैसे ही कहानी होंगी जैसे कि पालमपुर की दी हुई है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट डे वी टॉक अबाउट हु विल प्रोवाइड द लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम लार्ज फार्मर्स एंड सो ऑन। जो डेटा आपका है हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। आप ध्यान रखिए अच्छे से और अच्छे से पढ़ते रहिए। जो छोटी छोटी चीज़ मैं बताता हूँ तो आप काइंडली उसको नोट करें अच्छे से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।